मोलारिटी मोलालिटी आमर थिला स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आमे आजी पार्ट 2 वीडियो एटा सॉल्यूशन चैप्टर रो पार्ट 2 वीडियो। तो आमे पार्ट 2 वीडियो रे कोन करिवा ना आउ जेति की कंसंट्रेशन टर्म गुडा अछि से गुडा को डिस्कस करिवा आउ तापरे आमे किछि प्रॉब्लम आजी करिवा। तो किछि पिला कहितले कि लास्ट वीडियोटा सटिके वीडियो एते क्लियरेंस होउनी आउ थरे हमको मोल फ्रैक्शन टा बुझाई देबे। ठीक अछि पिले मु आउ थरे मोल फ्रैक्शन तुमको बुझाई दउची। तो आज हम क्लास स्टार्ट करिवा। दैट इज कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन ओके। सो मोल फ्रैक्शन कौन व्हाट इज मोल? मोल इज ए यूनिट ऑफ एनी स्मॉल सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमें कौन कहबा मोल कहबा। ठीक अछि। तो मोल को हमें केमति डिफाइन करबा व्हाट इज द मोल और व्हाट इज नंबर ऑफ मोल। 1 मोल इक्वल टू हमें जानछे 1 मोल इक्वल टू दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर मींस 6.023 into 10 to the power 23. It is any number. Okay. So mole fraction means it is the number of moles. Number of moles हमें केमति कैलकुलेट करिवा number of moles of any solute or solvent. Number of moles equal to mass of solvent or solvent divided by molar mass of solute or solvent. That is molar mass of solute or solvent. Okay. solute or solvent. So number of moles हमें केमति काढिबा mass of the substance divided by molecular mass of the substance. Okay. Now we can discuss or we have to discuss mole fraction. Mole fraction means the number of moles of solute or solvent to the number of moles of solution. ताले हमें यार डेफिनेशन ता केमति लिखिबा mole fraction that is x. It is defined as the number of moles of solute, or it is defined as the ratio between the number of moles of solute or solvent to the number of moles of solution. Okay. तो आमे बर्तमान डिस्कस करिवा जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तांकर रेशियो टा को आमे कोन कहूचे मोल फ्रैक्शन। ठीक अछि। तो बर्तमान आमे कोन करिवा ना मैथमेटिकल ता को लिखिया द मोल फ्रैक्शन इक्वल टू number of moles of solute or solvent divided by number of moles of solution. तो आमे जदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किंबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन द्वारा डिवाइड करिवा देन वी कैन गेट मोल फ्रैक्शन। ठीक अछि। तो वर्तमान आमे नबा इफ the number of moles of solute if the number of moles of solute equal to n1, number of moles of solute equal to n1, that means
mass of solute divided by molecular mass of solute, that equal to mass of solute, that is W1, divided by molecular mass of solute, that is M1. Now number of moles of solvent, that is equal to N2. That means mass of solvent divided by molecular mass of solvent, that equal to mass of solvent, that is W2, and molecular mass of solvent, that is M2. Now mole fraction of solute, that is x1, that taken as x1. So it is equal to number of moles of solute, जेहेतु आमे मोल फ्रैक्शन कहार सॉल्यूट रो बाहर करछे तेनो आमे ऊपर पार्टटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आमे लिखि परिबा एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, that is n1. Number of moles of solute, that is n1, divided by number of moles of solution, that is n1 plus of n2. जेहेतु आमे जानछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रे के अछंती ना सॉल्यूट अछंती, सॉल्यूट अछि आउ सॉल्वेंट अछि. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent. बर्तमान mole fraction of solute, that equal to n1 by n1 plus n2, that equal to x1. It is number of moles of solute divided by number of moles of solution equal to mole fraction of solute. Exactly similarly, there is mole fraction of solvent, mole fraction of solvent, that is x2. So it is equal to number of moles of solvent divided by number of moles of solution. So x2 equal to number of moles of solvent, that is n2, divided by number of moles of solution, that is n1 plus of n2. This is the expression for mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent is equal to the number of moles of solvent divided by the number of moles of solution. Now we can write the mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1. So mole fraction of solute plus mole fraction of solvent equal to 1. Okay, एटा हमें फाइनली पाइले. तो एती जिंस हमें बुझेइतिले आ गोटे प्रॉब्लम करैतिली. तो से प्रॉब्लम गुडा किछि मु लेखितिली, जो प्रॉब्लम गुडा को हमें डिस्कस करि परिबा. जे गोटे प्रॉब्लम अछि एठी. $58.5 gram of NaCl, 58.5 gram of NaCl is dissolved in 180 gram of water. So calculate the mole fraction of NaCl. Calculate the mole fraction of NaCl.
ठीक अछि। तो बर्तमान आमे एठी देखिबा जे हमकु काढिया पई पड़िबो दैट इज NaCl that is salt. So it is the solute and water is the solvent. NaCl is the solute, water is the solvent. Then we can calculate the number of moles of solute, that is NaCl, and the number of moles of solvent, that is water. So आमे सेटा को मिसाई देले कोन हबो ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आमे वर्तमान पाइबा कोन ना डी गिवन आमे लिखि परिबा गिवन the number of moles of solute हमें केमति पाइबा here amount of NaCl that is W1 equal to 58.5 gram. Then molecular mass of NaCl that is M1 equal to हमें लिखि परिबा एठी तले सोडियम रो होची 23 तो 23 plus of 35.5 that equal to 58.5. That's the molecular mass of NaCl. Now the amount of water that is W2 equal to 180 gram. अच्छा हमें एठी कैलकुलेट कर दवा जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl equal number of moles of NaCl equal to एठी 58.5 लिखि देली। बर्तमान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl that is N1 equal to हमें लिखि परिबा जे W1 by M1 that equal to 58.5 divided by 58.5 equal to 1. So N1 हमें केते पाई गले 1. बर्तमान amount of water is एति की molar mass और molecular mass of water that is M2 equal to 18 gram per mole. Now number of moles of water equal to that is N2 equal to W2 by M2 that equal to 180 divided by 18 that equal to 10. चले हमें बाहर करले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट that is NaCl and number of moles of solvent that is water. तो वर्तमान हमें मोल फ्रैक्शन काढी परिबा। मोल फ्रैक्शन हमें कोन जानिचे ना मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl. So mole fraction of NaCl that is X1 equal to N1 by N1 plus N2 that equal to N1 is 1 by 1 plus 10 that equal to 1 by 11. So it can be modified that equal to 0.09 okay. So this is the mole fraction of NaCl and it has no unit because these are the number
So number has no unit. So mole fraction of NaCl is this. We can also calculate the mole fraction of solvent, that is water. Mole fraction of water, that is X2 equal to N2 by N1 plus N2. That means 10 by 1 plus 10. So 10 by 11. So it equal to 0.90 0.90 ठीक अच्छे। तो बर्तमान आमे जानी गले जो गोटे सॉल्यूशन रो मोल फ्रैक्शन आमे केमती काढिबा। मोल फ्रैक्शन कहार गोटे सॉल्यूट रही पारे किंबा सॉल्वेंट रही पारे कोनोसी कंपोनेंट रो भी आमे मोल फ्रैक्शन टाको इजीली कैलकुलेशन करि परिबा। एमती क्वेश्चन देथिबो जे गोटे सॉल्यूशन अछि सेठी एतिकी परसेंट अछि मिथाइल अल्कोहल। सपोज गोटे क्वेश्चन देछि मु जोटा लास्ट क्लास रे भी ऑलरेडी बुझेई सारछि जे गोटे सॉल्यूशन अछि से सॉल्यूशन रे कोन अछि ना 20% अछि धरो मिथाइल अल्कोहल CH3OH, सेमती 30% अछि वाटर H2O एंड 60% अछि एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। सो এই जो सॉल्यूशन टारे कोन कहूची 20% मिथाइल अल्कोहल अछि, 30% वाटर अछि आउ 60% एसिटिक एसिड अछि। तो आमे वर्तमान प्रत्येक कंपोनेंट ईच कंपोनेंट रो आमे मोल फ्रैक्शन टाको कैलकुलेशन करबा करियबो। तो टोटल टाको आमे 100 ग्राम नै गले, टोटल टाको आमे 100 ग्राम नै गले। जदि 100 ग्राम नै गले तारो 20% माने केते 20 ग्राम, 20 ग्राम मिथाइल अल्कोहल से बडा 30 ग्राम वाटर से बडा तुमरो 60 ग्राम एसिटिक एसिड। तो हमको गिवन मास बा ताकर टोटल मास ता हमको दे देला। हमको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हो। जदि मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट कर दोजे ताले नंबर ऑफ मोल्स ता हमें कैलकुलेट कर दबा। नंबर ऑफ मोल्स पाई गला परे जदि मिथाइल अल्कोहल रो मोल फ्रैक्शन मागिथिबो ताहले हमें लिखि परिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके एई भले हमें सब गुडा कैलकुलेशन करि परिबा। एटा होची तुमरो मोल फ्रैक्शन जो माने बुझी पार नथिलो कहउतलो बा तुमको ठीक ठाक माने वीडियो देखा जाउ नथिला से माने एटा को देखि दबो आउथरे। तो एबे हम पढिबा मोल फ्रैक्शन गला देन परसेंटेज। परसेंटेज हमें केमती जानिबा गोटे सॉल्यूशन रे परसेंटेज केमती पाइबा। परसेंटेज परसेंटेज तो परसेंटेज हमें केमती पाइबा ना परसेंटेज रो चारटा फार्मूला केवल मन रखिबो। परसेंटेज हमें जानि जे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मल्टीप्लाई होबो आउ किछ नै। ठीक अछि जे केते अमाउंट रो सॉल्यूट रे बात एमथि भी कहि परिबो जे 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन रे हमरो केते सॉल्यूट प्रेजेंस अछि। द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंस इन 100 ml सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। सो परसेंटेज रे तुमरो चारि भाग रे विभक्त होइछि। गोटे होछि नंबर 1 मास टू मास परसेंट, मास टू मास परसेंट, मास टू मास that is W by W percent, mass to mass percent। तेनो आमे एठी देखिबा mass to mass percent रे कोन होउची ना mass to mass percent equal to mass of solute in gram divided by mass of solution in milliliter into 100। That is the formula for the mass to mass percentage। Like that, second mass to volume, mass to volume percentage, that is W by V, symbolically represent as W by V। So mass to volume, that means
mass of solute in gram divided by volume of solution. Volume, that is not milliliter, that is gram. It is little mistake in there. Okay, so milliliter नुहे एटा कोन हो ग्राम हो जेहेतु मास ने आउची सेत पई हमें ग्राम लिखुचे. Mass of solute in gram divided by volume of solution in milliliter into 100 volume of solution. So third रे हमें लिखिबा mass to volume गला, then volume to volume रे हमें लिख परिबा V by V percent. ओहो वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंट रे हमें लिखिबा जे वॉल्यूम टू वॉल्यूम माने मास में वॉल्यूम लिखिबा हमें टी volume of solute in milliliter divided by volume of solution in milliliter into 100. Fourth रे volume to volume गला, then volume to mass volume divided by mass, that equal to volume of solution in milliliter divided by mass of solution, sorry एठी भूल लिख देली मु, एटा solute, volume of solute in milliliter divided by mass of solution in milliliter into 100. এই চারটা ফর্মুলা রে আমি परसेंटेज एनी सॉल्यूशन रो काढी परिबा. mass to mass percent, that is mass of solute in gram divided by mass of solution in gram into 100. mass to volume to volume, then volume to mass. এই চারটা ফর্মুলা যদি আমি মনে রাখিবা তাহলে আমি एनी सॉल्यूशन रो तार परसेंटेज ता আমি কাढी परिबा. ठीक अछि, तो गोटे हमें प्रॉब्लम नहीं परिबा जे 10% एक्वास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ता माने कोन. टेन परसेंट aqueous solution of sodium hydroxide NaOH, या माने कौन 10% aqueous solution of sodium hydroxide ता माने टोटल सॉल्यूशन ता जदी हमें 100 ग्राम नबा, टोटल सॉल्यूशन ता जदी हमें 100 ग्राम नबा सेठी 10 ग्राम अछि सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम आउ 90 ग्राम तमरो कोन अछि जेहेतु एक्वास लेखा आइछि 90 ग्राम कोन अछि वाटर अछि. ठीक अछि, तो बर्तमान हमें एटा को कैलकुलेट केमथि करिया ना परसेंटेज कंपोजिशन रे 10% aqueous solution of sodium hydroxide, that means 10 gram sodium hydroxide 90 gram water. Okay, next हमें आसीबा परसेंटेज कंपोजिशन, सॉरी परसेंटेज गला. नेक्स्ट आसीबा हमें पार्ट्स पर मिलियन ppm. So parts per million means it is defined as the mass of solute or mass of solute divided by volume of solution into 1 million. Okay, but parts per million 1 million रे केते parts per million means कौन the parts of solute in 1 million parts of solution. It is denoted or it is defined
is the parts of solute in the million parts of solution. Okay, so parts per million, mathematically we can write that ppm equal to parts per million equal to mass of solute divided by mass of solution or volume of solution, that is volume of solution in milliliter into 10 to the power 6. 1 million equal to 10 to the power 6, that is the parts per million. ठीक अछि, आमे एतिकी कंसंट्रेशन टर्म को सिखिले. किछि प्रॉब्लम अछि, ठीक अछि, एई प्रॉब्लम ता एई खाली फार्मूला ता तुम मन रखिबो, फार्मूला मन रखले हे जो. तो बेसिकली हमरो सीएचएससी हो किबा सीबीएसई हो किबा आईसीएसई हो, प्रॉब्लम जो पड़े मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी आ मोल फ्रैक्शन, एतिकी रो प्रॉब्लम बेसिकली पड़े. तेनो सेई गुडा को टिके बेसिकली प्रैक्टिस कर दबो. तो आमे किछि प्रॉब्लम नै आस्तिले, किछि प्रॉब्लम आमे डिस्कस करिबा. दुई तीनटा प्रॉब्लम बेसी नै, सेई बेस रे तुमरो जतिकी प्रॉब्लम अछि निजे सॉल्व करि परिबो. फर्स्ट क्वेश्चन होची कैलकुलेट द मोलारिटी. क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मोलारिटी when 73 gram of HCl is dissolved in water to make 1500 milliliter of solution. तो क्वेश्चन ता फर्स्ट बुझो, से कहूची कैलकुलेट द मोलारिटी व्हेन 73 ग्राम ऑफ HCl is dissolved in water to make 1500 milliliter of solution. ता माने एडी देइची कोन कोन हमकु आमे लिखिबा given that the mass of solute that is W1 equal to mass of solute W1 equal to 73 gram. Then आमे काढी परिया molecular mass of solute एठी के HCl. mass of solute means एठी HCl होची solute. तो आमे यार molecular mass भी काढी परिया. molecular mass of HCl, that is solute. So M1 equal to molecular mass 1 plus 35.5, that equal to 36.5 gram per mole. Now volume of solution, that is V equal to 1500 milliliter. तो एडी कोन देइछि देखो, से कहूची जे 1500 मिलीलीटर सॉल्यूशन गोटे तयारी करिया पई 73 ग्राम रो HCl को आमे डिसॉल्व करले वाटर रे. तो आमे 73 ग्राम वाटर HCl जते बेले आमे वाटर रे डिसॉल्व करि सारले 1500 मिलीलीटर रो गोटे सॉल्यूशन पाइले. ताले से सॉल्यूशन रो मोलारिटी टा केते, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. ओके, नाउ we can write the molarity M equal to, we know the formula W1 by M1 into
1000 by V in milliliter, that equal to W1 that is 73, M1 that is 36.5 into 1000 by V equal to 1500. 20 cancel हो गला, that is into 2. So हमें 5 रे काट दो, 5 ये हला 2 ये 5 3, so that equal to 4 by 3, that equal to we can write 1 3 3 1.33 मोलारिटी. ताले हमें वर्तमान ए भलिया प्रॉब्लम जदी पडिथबो इजीली हमें कैलकुलेट करि परिबा. ठीक अछि. तो मास ऑफ सॉल्यूट पाई गले हमें देइची, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl माने होची सॉल्यूट, तो M1 हमें बाहर करले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देइची, मोलारिटी रो हमें फार्मूला जानि छे जे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक अछि. एटा होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केमति पाइबा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V. जदि V एठी मिलीलीटर रे अछि ताले 1000 मल्टीप्लाई करिवो, जदि V एठी लीटर रे अछि ताले हमको एठी 1 रे रखिया पई पडिबो, आ 1000 मल्टीप्लाई करिवा नाही, बिकॉज़ 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. Write down. Now next question. Next question jiba hame. Next question, find out the weight of sodium hydroxide. Question number 2, find out the weight of sodium hydroxide required to prepare 2 liter of N/10 solution. 2 liter of N/10 solution. तो एठी हमको कोन देछि, एठी नॉर्मलिटी देछि. नॉर्मलिटी केते देछि, N/10 मींस 1/10. ठीक अछि. तो वर्तमान देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें काढिबा जी केते सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिसेबा, केते ग्राम रो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिसेइले 2 लीटर N/10 हमें गोटे सॉल्यूशन पाइबा. आमे मिसेबा कोन ना सोडियम हाइड्रोक्साइड कोटे मिसेया वाटर रे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिसेई जिबा 2 लीटर हमरो 2 लीटर N/10 सॉल्यूशन हमें केमती पाइबा, त माने केते सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिसेबा पई पड़िबो. ठीक है. तो एठी देइछि देखो 2 लीटर सॉल्यूशन, ता माने हमको गिवन लिखिबा, एठी गिवन कोन देइछि, वॉल्यूम देइछि, वॉल्यूम ऑफ solution equal to V equal to 2 liter. आउ कोन देइछि, नॉर्मलिटी देइछि, नॉर्मलिटी केते देइछि, n equal to 1/10. ताले हमको W काढिया पई कहिछि सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो लेट हम लिखे लेट द weight of sodium hydroxide equal to W1. molecular mass of sodium hydroxide M1 equal to sodium रो 23, ऑक्सीजन होची 16, ये होची 1, टोटल मिसे देले 40. ताले एटा हला 40 ग्राम पर मोल. एटा होची मोलिकुलर मास कारो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो. तो मोलिकुलर मास हमें पाई गले, नंबर ऑफ मोल्स हमें पाई परिबा. अच्छा हमको नॉर्मलिटी देछि, नॉर्मलिटी माने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिबा. ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH that is E1 equal to 40/1. valency of cation that equal to 40 ग्राम इक्विवेलेंट. तो वर्तमान आमे कैलकुलेट करिबा नॉर्मल केते अमाउंट रो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिसेबा पई पड़िबो. क्वेश्चन ता मुली बै दोछि. ठीक है.
एटी शॉर्टेज तो वर्तमान देखो आमे कोई परिबा जे नॉर्मालिटी इक्वल टू n इक्वल टू W1 by E1 into 1 by आमे लिखि परिबा एटी जेहेतु लीटर रे देइछ तेणु आमे लिखि परिबा 1 by V in लीटर सो n इक्वल टू देइछि 1 by 10 इक्वल टू W1 केते जानिनी ता माने W1 रहिला M1 केते सॉरी E1 केते 40 into 1 by 2 लीटर रे अछि तो वर्तमान देखो ये कटि गला 4 ताले एटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हे गला W1 इक्वल टू 8 दैट इज 8 ग्राम ताले जदी आमे क्वेश्चन कोन थिला ना क्वेश्चन थिला जे सोडियम हाइड्रोक्साइड आमे केते मिसेले n/10 रो 2 लीटर आमे गोटे सॉल्यूशन पाइबा ताले आमे एटी आंसर पाइ गले W1 दैट इज weight of solute that is sodium hydroxide आमे 8 ग्राम जदी मिसेइ दबा ताले 2 लीटर n/10 आमे सॉल्यूशन गोटे तार स्ट्रेंथ रो सॉल्यूशन आमे तयारी करि परिबो अच्छा जदी ताले हमरो 10 ग्राम सॉरी 8 ग्राम हे गला सोडियम हाइड्रोक्साइड ताले 2 लीटर सॉल्यूशन ता हमें केमति पाइबा ना 2 लीटर रे हमें 2000 माइनस 8 कर दबा ताले सेठी हमें पाइ जिबा केते वाटर सेति की वाटर रे 8 ग्राम मिसे देला हमरो 2 लीटर रो गोटे n/10 स्ट्रेंथ रो सॉल्यूशन हमें पाइ जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 gram of sodium hydroxide is present in 200 ml solution find the molarity एटा करि परिबो एजिटा 4 gram sodium hydroxide एटी कहछि 4 gram sodium hydroxide present in 200 milliliter solution 200 milliliter solution रे 4 gram sodium hydroxide present अछि then what is the molarity एटी काढि परिबो तो molarity एटी m equal to हमें जानि छे W1 by M1 into 1000 by V in milliliter तो एटी W1 केते 4 ग्राम ताले एटी 4 ग्राम लिखि देली डिवाइडेड बाय M1 सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोलिकुलर मास केते 40 into 1000 by 200 तो ये हे गला that means 1 by 2 that equal to 0.5 molarity ताले इजीली कैलकुलेट जो ए भलिया क्वेश्चन जदी पडिथबो ताले तुम माने इजीली कैलकुलेट करि परिबो ठीक अछि तो एतिकी होछि हमर कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट आमे पढिबा जे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड solubility of solid in liquid okay thank you ए वीडियो रे मु एतिकी रखुची नेक्स्ट वीडियो रे मु solubility चैप्टर को पढेबी सो मु आ थरे आपन मानको को मने पकई दउची जे मु होची आपनकर एलेन सर आउ जदी ए वीडियो रे सब बुझी परितिबो ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो आउ किछि प्रॉब्लम हेले मते जणैबो मो फोन नंबर मो आउ थरे कहि दउची 7894490974 एवं 9337511351 ए दीटा मो नंबर एटे कांटेक्ट करि परिबो किछि प्रॉब्लम हेले आउ मो ना तो जानिचो एलेन सर so thank you and next video will be upload very soon that is solubility